Hallelujah. Praise God. Hallelujah. روز کی طرح خداوند ہم آج پھر سے تیری حضوری کو مانگتے ہیں، اپنے آپ کو تیرے مذبح پر لاتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند تیرے خون کے دھارے کے اندر اڈیل دیتے خداوند، تیری حضوری کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے خون کے دھارے کے نیچے اپنے آپ کو اڈیل دیتے خداوند پاک خدا، تیرا ہاتھ ہماری طرف بڑھے، یسوع نام سے برکت آنا شروع ہو، روح القدس کی حضوری اس جگہ پر ٹھہر گیا خداوند، ہماری مدد اور رہنمائی فرما خدا باپ، ہم تجھے پکارتے ہیں، ہم تجھے مانگتے ہیں خداوند، تیری برکت ہم پر ٹھہر گئی یہوہ آسمانی خدا۔ ہاللیلویا رب سوری تے نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد او ساتھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے۔ آئیے مل کر ہمارے ساتھ پرستش کرنا شروع کیجیے اور خداوند کو پکارنا شروع کیجیے۔ وہی ہے جو ہماری سختیوں کو ختم کر سکتا ہے، وہی ہے جو خداوند حالات کو بہتر کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہماری ساری سختیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ آئیے اس کو پکارنا شروع کریں اور دل کے ساتھ اس کی تعریف اور اس کی حمد کرنا شروع کیجیے۔ پریز کا رب اتارا رب ساڈا زوری، اپنے ہاتھ اٹھائیے خداوند کی طرف، نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد او ساتھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا۔ آپ کی سختیاں یسوع کے نام سے ختم ہوگی، آپ کی سختیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں گی، آپ کے گھر کی سختیاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں گی، بیماری کی سختیاں یسوع کے نام سے آج روح القدس کے وسیلہ سے ختم ہو جائیں گی، آج کاروبار کی سختیاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں گی، ورانیاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے پکارنا شروع کیجیے۔ ہاللیلویا رب ساڈا زوری نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد او ساتھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے۔ ایک بار پھر سے گائیں گے، مل کر خدا کی تعریف کریں گے۔ رب ساڈا زوری ہے، آپ کی باری، تے نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد او ساتھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے۔ ایک بار پھر سے گائیں گے، مل کر خدا کی تعریف کریں گے۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کو طرف اٹھائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سختیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے اندر سکونت آئے، آپ کی فیملی کے اندر خدا اپنی برکت کو نازل کرے، اگر آپ چاہتے کہ آج پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے، ورشپ کے وسیلہ سے
कलाम की कुदरत के वसीला से आपके बंधन खुले, तो आपको अपने मुंह को खोलना होगा खुदा के ज़ोर। आप जब ईमान के साथ खुदा के ज़ोर अपने मुंह को खोलेंगे, तो खुदावंद ने फरमाया कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। उस वक्त तक हमारी सख्तियां मौजूद रहेंगी जब तक हम खुद नहीं पुकारेंगे, खुद नहीं फरियाद करेंगे। उस वक्त तक कुव्वतें हमें परेशान करती रहेंगी जब तक हम खुद फरियाद नहीं करते, जब तक हम खुद खुदावंद के ज़ोर इल्तिजा नहीं करते। इसलिए खुदा ने कहा कि तू खूब अपने मुंह को खूब खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया। बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, आइए मिलकर पुकारना शुरू करें और बुलंद आवाज से कहिए, रब साडा सोरी है, नाले साडी है पनाह, दे मदद ओ सन जेड़ा साडा है। एक बार फिर से कहेंगे, रब साडा सोरी है, प्रेज़ गॉड, ते नाले साडी है पनाह। खुदावंद मेरी पनाह है, वही मेरा गढ़ है, ते मदद ओ सन जेड़ा साडा है। हालेलुया, हालेलुया, रसदा रबरा कसदा, हालेलुया, 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 रसबदो रकसदा ला 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 ला, हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहेंगे सारे मिलकर, हालेलुया, हालेलुया। आइए पुकारिए खुदावंद को यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से रूह कुद्दस की बारिश, बागों की मामूरी आना शुरू हो। खुदावंद बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, जुबे यीशु के नाम से खुल जाए, जकड़े यीशु के नाम से खुल जाए, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह का रोग यीशु के नाम से खत्म हो। खुदा और इस रबरा का संदरा रा रा, हालेलुया, संदरा रा 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 रा, हालेलुया, हालेलुया। आते जाइए मिलकर, हालेलुया, हालेलुया, ये संदरा बता रा रा रा, हालेलुया,
کرے اور آج کے کلام کے لیے، آج کی حضوری اور معموری کے لیے ہم خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ پریز کا نام قدوس مہربان ستا آسمانی خدا، یسوع ہم کے تیری نام، شکر گزاری کرتے ہیں اور اس وقت کچھ مانگ لیتے ہیں اپنے درمیان، اور یہ سندا راتا اور خدا ہم تو اپنے کلام کو نازل پریز فرما۔ کا آج تیرا کلام زندگیوں کی تبدیلی کے لیے ہو، یسوع کے نام، آج تیرا کلام زندگیوں کی مخلصی کے لیے ہو خداوند۔ بے شک آج کے کلام کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹے، کھلے یسوع جی کے نام سے خدا، جکڑے آزاد ہو خداوند۔ ہاللویا، ہم تیری بلیسنگ کو چاہتے ہیں خدا، تو کرم کرنا، فضل کرنا خدا۔ آج جتنے بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں خدا، ان پر تیری بلیسنگ کو چاہتی ہوں۔ جب تیرا کلام ہو تو خدا ان تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے کلام کو ریسیو کر کے بہت سا پھل لائیں اور تیری شکر گزاری کر سکے۔ خداوند تو اپنے کلام کو نازل فرما اور خداوند شفا عطا فرما ہر ایک کو۔ خداوند تیرا کلام آج زندگیوں میں کثرت سے کام کرے، تیرے لوگ تیرے کلام کو ریسیو کرے، اس پر عمل کر کے خداوند اور تیری شکر گزاری کر سکے۔ رحم فرما، ترس کا خدا، تیرے خادم کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کر، تاکہ خداوند جب تیرا خادم بولے تو خداوند روح القدس کا مسا، روح القدس کا گہرا نزول نازل ہو خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے، اور زندگیاں برکت پائیں، زندگیاں سلامتی پائیں۔ مسیحا کے پاک جلالی اور سندر نام سے سب کچھ مانگتے ہیں، آمین 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 پریز گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ پریز گاڈ۔ ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، آپ جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے درخواست کی جاتی کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو ہم سیکھیں اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کریں، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ آج کے کلام کی برکت دوسروں تک پہنچ سکے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر آج خداوند کے حضور برکت کو ریسیو کر سکیں۔ اور ہم نے مل کر خداوند کی ورشپ کی ہے، خداوند کے نام کو جلال دیا ہے، اور ہم نے یقیناً برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ اور آج خدا کا پاک روح آج پھر سے میری اور آپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے، اور خدا جب اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے تو ہماری آئین ضرورت کے لیے، اور ہماری آئین ضرورت کے لیے خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، اور خداوند جب اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے تو یقیناً جانے خدا اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بندروں کو، جبوں کو کھولتا ہے، اور خدا کے کلام کی برکت کے وسیلہ سے ہم سیر ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے، خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر قوموں کو رہا کرتا ہے، اور اپنے لوگوں کو ان کی ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ سائے کلام مقدس کی ہم جانب بڑھیں گے اور خدا کے کلام کو ہم سیکھیں گے۔ میرے ساتھ مقدس زبور کی کتاب نکالیے، مقدس زبور کی کتاب جس کو شاعری کی بھی کتاب کہا گیا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں جو آج ہم سیکھنے والے ہیں، ہم ایک اہم بات کو ہم سیکھیں گے، اور وہ ہم ہر روز کلام مقدس کی برکت کو حاصل کرتے ہیں، لیکن آج پھر سے خدا تھوڑی دیر کے لیے اپنے کلام کے وسیلہ سے میں برکت دے گا۔ تو تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے۔ اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ کلام کی برکت ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ آئیے کتاب مقدس کو کھولی میرے ساتھ، مقدس زبور کی کتاب، اور اس کا 139 زبور، اور اس کی ہم 7 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ مقدس زبور کی کتاب، اس کا 139 زبور، اور اس کی ہم 7 آیت کو پڑھیں گے، اور خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر اس متن کو ہم پڑھیں گے۔ ہم 7ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گی۔ سو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ آمین آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ کلام مقدس کا جو حصہ ہم نے اپنی برکت کے لیے پڑھا ہے اور سنا ہے، اس زبور کو لکھنے والا مقدس داؤد ہے، اور مقدس داؤد جو ہے وہ خدا کے حضور یہ دست دعا بلند کرتا ہے، یہ مزمور لکھتا ہے،
یہ خداوند کے حضور اپنے ایمان کا وہ اظہار کرتا ہے، اور خداوند کا کلام جب روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ وہ قلم بند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے مذبح پر لاتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو خدا کے مذبح پر رکھتا ہے، چاروں اطراف سے وہ نظر دہراتا ہے، چاروں اطراف سے وہ دیکھتا ہے، وہ آسمان کو بھی دیکھتا ہے، آسمان کو بھی ٹٹولتا ہے، زمین کو، فضاؤں کو، اور ہر چیز کے اندر وہ جھانک کر دیکھتا ہے، پتال کے اندر، پانی کے اندر، سمندر کے اندر، ہر چیز کے اندر وہ ایک بار جھانک کر دیکھتا ہے، اور اس لیے جھانک کر دیکھتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی جگہ پر جس جگہ پر میری نظر کام کرتی ہے، جس جگہ پر میں دیکھتا ہوں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں ہے، کون سی ایسی جگہ ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا ہے، آسمان کو ٹٹولتا ہے، آسمان کو جھانک کر دیکھتا ہے، وہ زمین پر جھانک کر دیکھتا ہے، وہ پتال کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، وہ سمندر کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، اور ٹٹولتا ہے کون سی ایسی جگہ ہے۔ وہ اندھیرے کو بھی، وہ روشنی کو بھی، وہ ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہے، اور ہر چیز کو جب دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر خدا نہیں ہے، لیکن در حقیقت جب اس نے ساری چیزوں کو دیکھا، ٹٹولا، جھانک کر دیکھا، تو اس کو ایسی کوئی جگہ نہ ملی جس کے باعث وہ کہہ سکتا تھا یا کہہ سکتا ہے کہ خداوند تو اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ وہ خدا کی قدرت کو جانتا ہے، وہ خدا کی قدرت سے واقف ہے، اور جب خدا کی قدرت سے واقف ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں۔ وہ خداوند کے حضور فریاد کرتا ہے، خداوند کے حضور جو یہ التجا کرتا ہے، اور خداوند کے حضور جب یہ التجا اور فریاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور انڈیل دیتا ہے، اور جب اس نے ساری چیزوں کو دیکھا، نگاہ کی، چاروں اطراف سے نظر دہرائی، کوئی ایسی جگہ اس کو نہ ملی جس جگہ پر خدا نہیں تھا، لیکن خداوند کے حضور وہ اس بات کا پھر اقرار کرتا ہے، بلند آواز سے کہتا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں۔ وہ جانتا ہے کہ میں خدا کی نظر سے بچ نہیں سکتا، وہ جانتا ہے کہ میں خدا کی روح سے بچ نہیں سکتا، وہ جانتا ہے کہ خدا کی حضوری سے میں بھاگ کر کدھر جا سکتا ہوں۔ خدا کی حضوری تو ہر جگہ پر موجود ہے، خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے، خدا آسمان پر بھی ہے، خدا زمین پر بھی ہے، خدا فضاؤں پر بھی ہے، خدا ہواؤں پر بھی ہے، خدا پانیوں کے اندر موجود ہے، سمندروں کے اندر موجود ہے، پہاڑوں کے اندر موجود ہے، روشنی کے اندر موجود ہے، تاریکی کے اندر موجود ہے، پتال کے اندر موجود ہے، خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ کہتا کہ میں خداوند تیری حضوری سے بچ کر کدھر بھاگوں۔ کوئی ایسا اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا، کوئی ایسی جگہ اس کو نہیں ملتی، کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ چھپ کر بیٹھ سکے خدا کی نظر سے، کوئی ایسی جگہ اس کو نہیں ملتی ہے۔ اور وہ خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہے، خداوند تو ہر جگہ پر موجود ہے، تو دور کا بھی خدا ہے، تو نزدیک کا بھی خدا ہے، تو آسمان کا بھی خدا ہے، تو زمین کا بھی خدا ہے، تو زمین کے نیچے پانیوں کا بھی خدا ہے، پتال کا بھی خدا ہے، سمندروں کا بھی خدا ہے، پہاڑوں کا بھی خدا ہے، زمین کے ذرے ذرے کا تو خدا ہے، تو ذرے ذرے کے اندر سمایا ہوا ہے اور چھپا ہوا ہے، ہر جگہ پر تیری قدرت موجود ہے، پہاڑوں کے اندر، فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، ہر چیز کے اندر خداوند تیری قدرت موجود ہے، میں تیری حضوری سے بچ کر کدھر بھاگوں۔ کئی بار ہم اپنے خیالات کو، اپنی ناقص عقل کو جب استعمال کرتے ہوئے ہم کئی بار یہ ایسا اپنے ہی اندر یہ اقرار کرتے ہیں اور یہ بات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ میں تو خدا کی نظر سے بچ سکتا ہوں، میں فلاں جگہ پر جاؤں گا، میں خدا کی نظر سے بچ جاؤں گا، یا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ہم خدا کی حضوری سے بچ نہیں سکتے، ہم خدا کی حضوری سے بھاگ نہیں سکتے، ہم خدا کی حضوری سے دوڑ نہیں سکتے،
खुदा हर जगह पर मौजूद है और हमें वो देखता है, हमें वो जानता है। और दाऊद इसी ज़बूर के अंदर फरमाता है, ऐ खुदावंद तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे ख्यालातों को दूरी से समझ लेता है। और खुदावंद के हुजूर वो कहता है कि तू मेरे ख्याल को दूरी से समझ लेता है और तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रवशों से वाकिफ है। आमीन। खुदा इंसान की रवशों से वाकिफ है, खुदा इंसान के इरादे से, खुदा इंसान की हर बात से वाकिफ है, खुदा हर एक चीज से वाकिफ है और खुदा जानता है कि इंसान क्या कर रहा है, क्या करने वाला है और वो क्या करेगा अगले वक्त के अंदर। खुदा पहले भी जानता है, खुदा मौजूदा हालत को भी जानता है और खुदा इंसान के अगले वक्त को, अगले ख्यालातों को भी जानता है कि वो क्या करने वाला है। लेकिन याद रखें, हमें ज़रूरत है हम इस बात को अपने ज़हन में, अपने ख्यालात के अंदर, अपनी नाकस अक्ल के सबब से ऐसा ना कहें कि हम खुदा की हजूरी से बच सकते हैं। याद रखें, हम खुदा की हजूरी से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते, हम खुदा की नज़र से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। अगर हम छुपने की कोशिश करें तो भी हम नहीं छुप सकते, अगर हम भागने की कोशिश करें तो भी हम खुदा की हजूरी से भाग नहीं सकते। हम खुदा की हजूरी से कभी भी भाग नहीं सकते। जितना मर्जी हम भागने की कोशिश करें, जितना मर्जी हम भागने की तगोदो करें, हम कभी भी खुदा की हजूरी से भाग नहीं सकते। आज बेशुमार जिंदगियां खुदा से भागी हुई हैं, खुदा से दूर हैं, खानदान खुदा के से दूर हैं और ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे, ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो खुदा की हजूरी से बचने की कोशिश कर रही हैं और वो भाग रही हैं और भागना चाहती हैं। खुदा की हजूरी उनको पसंद नहीं है, खुदा की इबादत करना उनको पसंद नहीं है, खुदा के हजूर वक्त गुजारना उनको पसंद नहीं है। वो दुनिया के अंदर खोए हुए हैं, दुनिया की बातों के अंदर खोए हुए हैं, दुनिया के सिलसिलों के अंदर खोए हुए हैं। उनको कुछ भी इल्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, काम हमारा जो है कभी हमें निजात नहीं दे सकता, ना दिला सकता है। हमारी जुस्तजू, हमारी गुफ्तगू, हमारी जो मेहनत कभी भी हमें खुदा की निजात की तरफ नहीं ला सकती। अगर हमें कोई चीज खुदा से निजात दिला सकती है तो वो खुदा की हजूरी ही है। आमीन। खुदा की हजूरी से हम बचकर कहीं भाग नहीं सकते। और ऐसे लोग जो भगौड़े हो चुके हैं, जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया है और खुदावन से दूर भाग रहे हैं, लेकिन याद रखिए, आप खुदा की नजर से बच नहीं सकते, आप खुदा की हजूरी से बच नहीं सकते। जितना मर्जी आप भाग लें, आखिरकार आपको खुदा की हजूरी के अंदर आना है। खुदा आपको ले आएगा, खुदा आपको अपने तरीके के साथ लेगा। पहले तो वो प्यार के साथ खुदा बुला रहा है कि ऐ मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। लेकिन अगर कोई इंसान खुदा की आवाज को नहीं सुनता तो खुदा फिर अपना तरीका इस्तेमाल करता है। पहले तरीका वो प्यार का इस्तेमाल करता है, पहले तरीका वो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है प्यार की जुबान है, प्यार की आवाज है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास वापस आ जा। और खुदा बुलाता है। अगर इंसान नहीं सुनता, अगर भागने की कोशिश करता है खुदा की हजूरी से, खुदा के मज़बा से, खुदा की बारगाह अक़दस से भागने की कोशिश करता है, तो याद रखें, आप जो भी हैं, जो भी इंसान ऐसी कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, खुदा से जुदा रहना चाहता है, तो याद रखें, हम खुदा की नजर से बच नहीं सकते। हम खुदा के हजूरी से भाग नहीं सकते। और इसलिए खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि मैं तेरी हजूरी, तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं। हम खुदा के पाक रूह से बच नहीं सकते। वो रूह कुद्दस, वो पाक रूह जो पानियों के ऊपर जुम्बश करता है, जो आज के दौर के अंदर खुदा अपने लोगों पर, अपने बंदों पर जुम्बश करता, रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से रूह कुद्दस उन पर जुम्बश करता है। और फिर वो पुराने जमाने के अंदर जब देखते हैं और अंजील मुकद्दस के जमाने के अंदर जब देखते हैं, और फिर इसके बाद बाइबल मुकद्दस के जमाने के अंदर हम जब देखते हैं, खुदा नबियों के ऊपर अपनी रूह को उंडेलता था, अपने मसा को उंडेलता था, अपनी हजूरी को उंडेलता था। खुदा का रूह कुद्दस उनके साथ साथ
चलता था, रहता था, ऊपर ठहर जाता था, कहनों के ऊपर, लावियों के ऊपर, खिदमत गुजारों पर, अपने खुदा लोगों पर अपने मस्सा को उड़ेलता था। और जब मस्सा खुदा का उतरता था तो बंधन जुए टूट जाते थे, बेड़ियां खुल जाती थी, लोग आजाद हो जाते थे। खुदा अपने रूह की कुदरत के वसीला से मुजज़ात करता था। आज भी खुदा अपने रूह कुदस की कुदरत के वसीला से जलाली काम करता है। खुदा का बसा जब नाज़िल होता है तो कई जुए बंधन टूटते हैं, कई जकड़े आज़ाद हो जाते हैं, कई जो है वो जिंदगियां आज़ाद हो, कई बदन आज़ाद हो जाते हैं, कई घर आज़ाद हो जाते हैं, कई कारोबार आज़ाद हो जाते हैं, कई सिलसिले अच्छे और बेहतर हो जाते हैं। और इसलिए हम भाग नहीं सकते, खुदा की हुजूरी से भाग नहीं सकते, हम खुदा के पाक रूह से भाग नहीं सकते, खुदा से हम कहीं भाग कर छुप नहीं सकते। अगर हम कोशिश करेंगे तो ये हमारी अक्ल जो है वो ये नाकस है, ये हमारी अक्ल कमतर है, हमारी अक्ल कमज़ोर है। लेकिन याद रखें खुदावन किस कदर अजीम है, जो हमारी खुद वो तलाश करता है, हमारी खुद वो फिक्र करता है, हमारा खुद वो ख्याल रखता है। और खुदा इसलिए हमारा पीछा करता है। याद रखें खुदा इसलिए वो हमारा पीछा करता है क्योंकि वो हम उसके बेटे हैं, हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं, हम उसके चुनिंदा लोग हैं, हम बुलाए गए हैं। खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है और वो अजीम मोहब्बत हमारे साथ करता है। मखलूक़ात से ज़्यादा जो है वो अपने लोगों को प्यार करता है, तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा जो है वो बनी नौ इंसान के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और खुदा बनी नौ इंसान को बचाना चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता है। इसलिए खुदा की मोहब्बत अजीम है और हम खुदा की नज़र से बच नहीं सकते, खुदा के रूह से बच नहीं सकते। और खुदावंद के हुजूर अगर हम बचने की कोशिश करें, छुपने की कोशिश करें, तो ये हम नाकाम हैं, ये हमारी अक्ल नाकस है और हमारी जो ये कमज़ोरी है, हमारी ये जहालत है कि हम खुदा की नज़र से बच जाएंगे, हरगज़ नहीं बचेंगे। जितना मर्जी भाग जाएं, जितना मर्जी हम पीछा छुड़ा ले, जान छुड़ा ले, आखिरकार खुदा अपने तरीके के साथ वो बुला लेगा और उसके पास तरीके हैं। आज देखें वो जिंदगियां भी आज खुदावंद को पुकार रही हैं जिन्होंने कभी भी दुआ नहीं की, कभी भी प्रस्तश नहीं की, कभी भी वो चर्च नहीं गए, लेकिन इस वबा के डर से, इस वबा के खौफ से कई जिंदगियां जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, खुदा के हुजूरी के अंदर आ गए। खुदा के पास अपने तरीके हैं। याद रखें जब पलूस और सलास, पलूस जो है वो पलूस खुदा का बंदा, वो खुदा के लोगों को मार रहा था, यीशु मसीह के लोगों को, यीशु मसीह की जो पैरवी जिन्होंने करना शुरू कर दी थी, पलूस जो है वो मसीह लोगों को मार रहा था। जब मार रहा था तो फिर खुदा ने उसको अपने तरीके के साथ अपने पास, अपने करीब वापस लिया। वही पालूस जो है, वही सौल जो है, जो पहले मसीहत को मार रहा था, खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब खुदा का जलाल उस पर जाहिर हुआ, यीशु मसीह की कुदरत उस पर जाहिर हुई, खुदा यीशु मसीह उसके ऊपर जाहिर हुआ है, तो लिखा कि उसके वो जमीन पर मुंह के बल गिर गया। जब मुंह के बल गिर गया तो खुदा यीशु मसीह ने उसके साथ कलाम किया, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। लेकिन खुदा ने जब उस पर अपने आप को जाहिर किया, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए तो वो पुकार उठता है, कहता है कि खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ। तो सौल ने कहा, पालूस ने कहा, जब उसने कहा कि खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही यीशु हूँ जिसे तू क्या है सता रहा है, जिसकी पैरवी जो लोग कर रहे हैं उनको तू मार रहा है, तू तो मुझे मार सता रहा है। तो पालूस रसूल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जब उस पर जाहिर हुए तो फिर खुदावंद ने अपने तरीके को इस्तेमाल किया और उसको अपनी कुर्बत के अंदर लिया, अपनी खिदमत के लिए उसको तैयार किया, अपने लिए चुन लिया, अपने लिए उसको मुकर्रर कर लिया। वही सौल जब सौल से क्या है
पालूस बन गया, और जब पालूस बन गया तो उसने गैर कौमों के अंदर डट कर मुनादी की, वही मसीहत की, वही यीशु मसीह की, वही यीशु मसीह के जिंदा होने का वो गवाह बन गया। कौमों के दरमियान, गैर कौमों के दरमियान वो यीशु मसीह के जी उठने की वो मुनादी करने लगा, और वही यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। और जब यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, वही जो मसीहत को खत्म करना चाहता था और खुदा को सता रहा था, यीशु मसीह को सता रहा था, जब खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, अपने तरीके को इस्तेमाल किया, तो वही पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। खुदा ने अपने तरीके को इस्तेमाल किया। याद रखें, जब खुदा अपने तरीके के साथ अपनी कुर्बत के अंदर लाता है तो फिर तकलीफ होती है, फिर हमें अजियत मिलती है, कई मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन खुदा हमें मुसीबत के अंदर, हमें बीमारियों के अंदर, हमें तकलीफों के अंदर, हमें मौत के आलम के अंदर नहीं डालना चाहता। लेकिन जब हम खुदा की सुनते नहीं है ना, खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं, तो फिर खुदा अपने तरीके इस्तेमाल करता है। खुदा फिर बीमारियों के सबब से, ऐसा नहीं है कि खुदा बीमारियां उंडेलता है, लेकिन हमारी ख्वाहिशों के सबब से, हमारी जहालत के सबब से, नाफरमानी के सबब से, गुनाह के सबब से जो है आज़माइशें फिर आना शुरू हो जाती, तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। फिर भी खुदा हमारे लिए ऐसे वसाइल पैदा करता है ताकि हम उनमें से निकल आए। तो खुदा फिर अपने तरीके को इस्तेमाल करता है, फिर ये हालतें बुरी होना शुरू हो जाती हैं। खुदा फिर मुख्तलिफ तरीकों के साथ बड़ी नौ इंसान को अपने पास लाने की कोशिश करता है और वो कुदरत रखता है। और जब उसके लोग फिर उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो फिर पहले से ज़्यादा वो बरकत को हासिल करते हैं, पहले से ज़्यादा वो खुदा की कुदरत को देखते हैं और मज़ा चखते हैं और खुदा की हुजूरी के अंदर वो झुक जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के हुजूर अपने आप को ले ले और भागे ना, खुदा से ना भागे, ना खुदा की हुजूरी से भागे। और हम भाग भी नहीं सकते, हम खुदा से भाग नहीं सकते। और लिखा कि खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है, हल्की बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। हम खुदावन के हाथ में है। जिससा यिर्मयाह नबी से खुदा ने कहा कि जिससा कम्हार के हाथ के अंदर मट्टी मौजूद है, वो अपनी मर्जी से जो कुछ वो बनाना चाहता है वो बनाता है। इसलिए खुदा यिर्मयाह नबी के साथ, इसराइल के साथ कलाम करता है, उसकी मार्फत कलाम करता है कि जिस तरह कम्हार के हाथ में मट्टी है और उसके कंट्रोल में है, इसी तरह बनी इसराइल जो है मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। तो हम खुदा के हाथ से बच नहीं सकते। खुदावन का हाथ छोटा नहीं है, खुदा का हाथ कमजोर नहीं है, खुदा का हाथ मामूली नहीं है, खुदा का हाथ जो है वो कम तर नहीं है। खुदा का हाथ कुदरत वाला है और खुदा ने अपनी मुट्ठी के अंदर पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है और रखा है। जरूरत है हम खुदावंद की हुजूरी के अंदर आ जाएं, खुदावंद की आवाज को सुने और अपने दिलों को सख्त ना करें, अपने सोचों को बदले, अपने ख्यालात को बदले। खुदावंद हमें आज पुकारता है और खुदा इसलिए पुकारता है ताकि हम हलाकत से बच जाएं, हम मुसीबतों से बच जाएं, हम वरानियों से बच जाएं, हम तूफानों से बच जाएं, हम इब्लीस की चुंगलों से बच जाएं, हम जादूगिरों से बच जाएं, हम ज़नाकारी से बच जाएं, हम हरामकारी से बच जाएं, हम नशाबाजी से बच जाएं, हम जो वो सारी गंदगी से बच जाएं और हम उन वबाओं से और रवाओं से बच जाएं जो हमारे खिलाफ हैं। इसलिए इब्लीस लिखा कि झूठा है और वो झूठ का बाप है। अब वो मकारी के साथ, अपनी मकारी के साथ इंसानों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उनके जहनों पर, उनके खानदानों पर कब्जा करना चाहता है और उनको कंट्रोल करना चाहता है। जब उनको कंट्रोल इब्लीस करना चाहता है तो फिर खुदा परेशान होता है। खुदा जब वो फिक्रमंद हो जाता है कि मेरे लोग किसी मुसीबत के अंदर ना पड़ जाए, इब्लीस के हाथों के अंदर ना पड़ जाए, फिर खुदा फिक्रमंद हो जाता है। लेकिन अगर खुदा के लोग खुदा की आवाज को सुनते हैं तो कभी भी वो इब्लीस के हाथों में नहीं पड़ेंगे, कभी भी वो बीमारियों के हाथों के अंदर नहीं पड़ेंगे, कभी भी वो हॉस्पिटलों के हाथों में नहीं पड़ेंगे, कभी भी वो थानों कचहरियों के अंदर भी नहीं वो पड़ेंगे, बल्कि खुदा उनकी आप हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा। और अगर कोई इंसान खुदा की आवाज नहीं सुनता, खुदा की आवाज को रद्द कर देता है, खुदा की कुर्बत के अंदर रहना पसंद नहीं करता, खुदा की हजूरी के अंदर रहना पसंद नहीं करता, तो याद रखे खुदा फिर क्या है, खुदा फिर क्या है। कई बार ऐसा होता है, यशाया नबी की मार्फत जब हम देखते कलाम मुकद्दस का हम मुतालिया करते हैं
तो खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम्हारी बदकारी के बायस तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई आ चुकी है। खुदा जुदा नहीं रहना चाहता, ना हमें जुदा रखना चाहता है, लेकिन हमारी जुदाई उस वक्त होती है, खुदा जुदा उस वक्त होता है जब गुनाह जिंदगी के अंदर आ जाता है, जब बदी अरूज पर हो जाती है। खुदा के दरमियान जब हम तीसरी शख्सियत को ले आते हैं तो फिर खुदा जुदा हो जाता है। और वो तीसरी शख्सियत कौन सी है? वो गुनाह है। यशायाह इसलिए कहता है कि तुम्हारे बदकारी के सबब से, तुम्हारे गुनाह के सबब से खुदा और तुम्हारे दरमियान क्या है? जुदाई आ चुकी है। हालांकि खुदा ऐसा नहीं है, खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके, खुदा का कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके। तुम्हारी बदकारी ने क्या किया है? तुमको तुम्हारे खुदा से क्या है? जुदा कर दिया है, रुपोश कर दिया है। ऐसा नहीं है कि खुदा सुनता नहीं है, खुदा सुनता है, खुदा बहाल करता है, खुदा छुड़ाता है और खुदा हमारी फिक्र करता है। इसलिए हम कहीं भी दौड़कर खुदा की नजर से बच नहीं सकते और हम खुदा से जुदा रहकर कुछ नहीं कर सकते। जरूरत है कि हम खुदावंद के हुजूर उसकी कुर्बत के अंदर रहें। अगर बरकत पाना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, तसल्ली पाना चाहते हैं, इत्मीनान को हासिल करना चाहते हैं, अपने और अपने घर की सलामती चाहते हैं, अपनी फैमिलियों की सलामती चाहते हैं, तो हमें खुदा की हजूरी में झुकना है, खुदा की हजूरी के अंदर ठहरना है। और यहाँ पर 3-4 बातें खुदा का बंदा फरमाता है कि अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। आमीन। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पताल में चला जाऊं तो पताल में बिस्तर बचाऊं तो तू देख, तू वहां भी है। आमीन। अगर मैं सुख के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो तू कि मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, तो मेरी चारों अतराफ उजाला जो है वो रात बन जाएगा और तू अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता। वो कहता कि अगर मैं तारीकी के अंदर छुप जाऊं और तारीकी के अंदर अपने आप को छुपा लूं तो भी तारीकी तेरी कुदरत के वसीला से क्या है? चानन बन जाएगी और अंधेरा भी क्या है? चानन हो जाएगा और उस अंधेरे के अंदर भी खुदा तू मौजूद है। हालेलुया। खुदा आसमान पर भी मौजूद है, जमीन पर भी मौजूद है, तारीकियों के अंदर, फजाओं के अंदर, हवाओं के अंदर, पहाड़ों के अंदर, हर चीज पर उसकी कुदरत क्या मौजूद है और खुदा हर जगह पर हाजिर और नाजिर है। और दाऊद खुदा का बंदा इसलिए फरमाता है कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। हम खुदा की हजूरी से बच नहीं सकते और अगर हम बचने की कोशिश करें तो हमारी ये अक्ल नाकस है, हमारी ये अक्ल कम है, हमारी ये जहालत है जिसके सबब से हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम खुदा की हजूरी से कहीं भी भाग नहीं सकते, कहीं भी दौड़ नहीं सकते। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे हम तकलीफ उठाएंगे, मुसीबत उठाएंगे, बीमारी उठाएंगे, बहुत सारी मुसीबतों और दुखों का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए आइए अपने आप को खुदा के हुजूर उड़ेलें और उस खुदा की ताबियादारी के अंदर आ जाए जिस ताबियादारी के अंदर उसकी सारी मखलूकात मौजूद है। ऐसे खुदा की वर्शिप हम करते हैं जो सारी कुदरत का मालिक है, जो हर जगह पर मौजूद है। और खुदा हमारा किस कदर अजीम है, जो हमारे साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है और वो हमारी जान बचाना चाहता है, हमारी जान को हलाकत से बचाना चाहता है। वो हमारी जान को बदकारी से, मौत से, बीमारियों से, तकलीफों से बचाना चाहता है। इसलिए दाऊद की तरह अपने आप को खुदावंद के हुजूर ताबिया कर दें और हम मिलकर खुदावंद के हुजूर उसके नाम को जलाल देते रहें। यही हमारे लिए भला है, यही हमारे लिए अच्छा है, यही हमारे लिए चंगा है, यही हमारे लिए बेहतरी है। स्वयं अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और मैं आपके साथ मिलकर चंद लम्हे दुआ में वक्त गुजारना चाहता हूँ। आइए मिलकर खुदावंद के हुजूर अपने हाथों को उठाइए, खुदावंद के हुजूर दुआ करना शुरू कीजिए, खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए। अगर आप खुदा से भागे हुए हैं, खुदा से दूर हो चुके हैं, दुनिया की फिक्रों ने आपको खुदा से दूर कर दिया है, दुनियादारी की बातों ने खुदा से आपको दूर कर दिया है, कोई भी गुनाह जिसके सबब से आप खुदा से दूर हो चुके हैं या खुदा आपसे नाराज हो चुका है, खुदा का रूह कुद्दस आपसे नाराज हो चुका है, तो अच्छा मौका है खुदा के हुजूर फरियाद करने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का, अपने गुनाहों से
खुदावन के हजूर इकरार करने का, अपने गुनाहों को मान लेना हमारे लिए खुदा के हजूर यही फायदेमंद है, यही हमारे लिए बरकत का वसीला है। इसलिए आइए खुदावन के हजूर झुके और उसको पुकारना शुरू कीजिए, खुदावन के हजूर फरियाद करना शुरू कीजिए और कहिए कि खुदावन मैं तेरी हजूरी से बचकर कहीं भी जा नहीं सकता, मैं तेरे रूह से बच नहीं सकता, मैं तेरी हजूरी से बचकर कहीं भी रह नहीं सकता। तू हर जगह पर मौजूद है, तू हर जगह पर तेरी कुदरत मौजूद है। हालेलुया, प्रेज गॉड, राका संदर। खुदावन यकीनन तू अजीम है, तेरी मोहब्बत हमारे लिए अजीम है, तू बेहद प्यार करता है, तू बेहद हमारी फिक्र करता है और हम तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तुम्हारी फिक्र इसलिए करता है ताकि हम आने वाली मुसीबतों, हलाकतों से और हर तरह की बुरी रवाओं से बच सके। खुदावन ए कादर मुतल्लिक खुदा, तेरी खास मोहब्बत के लिए, तेरे खास बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, और सारा जलाल, सारी इज्जत, बुजुर्गी तेरे नाम को देते खुदावन। जितनों ने आज तेरी आवाज़ को सुना है, तेरी बरकत इन पर, इनके फैमिलियों पर, इनके घरानों पर ठहर जाए खुदावन। और कादर मुतल्लिक खुदा, आज के कलाम की जो बरकत तेरे लोगों ने हासिल की है यीशु के नाम से खुदा, इनके खानदानों तक, इनके घरानों तक, इनकी जिंदगियों तक यीशु के नाम से ठहरे खुदावन। और इसी तरह खुदावन पाक खुदा, जलाल के बड़े खुदा बाप, जिन्होंने तेरे हजूर इकरार किया है, तौबा की है, अपने गुनाहों से खुदावन पाक खुदा माफ़ी मांगी खुदावन, यीशु के नाम से इनको बहाल कर दे। कादर मुतल्लिक खुदा, अपने बच्चों पर रहम कर, अपने बच्चों को खुदावन अपनी कुर्बत के अंदर आने का दोबारा फजल दे खुदावन। यकीनन हम जितने भी हैं, हम जितने भी इंसान हैं, तेरी हजूरी से कहीं बच नहीं सकते खुदावन, हम भाग कर कहीं नहीं जा सकते खुदावन। तेरी हजूरी हर जगह पर मौजूद है, तेरी मौजूदगी हर जगह पर मौजूद है खुदावन, और तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता खुदावन। और जितनों ने आज तेरे हजूर दरखास्तें पेश की हैं खुदावन, एक एक दरखास्त पर तेरे लहू को मांग लेते खुदा बाप। यीशु के नाम से एक एक फैमिली के लिए तेरे हजूर सलामती चाहते, एक एक जान के लिए, एक एक बदन के लिए, एक एक रूह के लिए खुदावन तेरे हजूर पाक खुदा तुझसे बरकत चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं। ऐ खुदावन पाक खुदा, सारे रोग खत्म हो जाए, सारी तकलीफें खत्म हो जाए, सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह का रोग पोशीदा हो, ज़ाहरी हो, खानदानी हो, माली हो, यीशु के नाम से खत्म हो खुदा। और तेरा रूह कुद्दस सारे बंधनों को तोड़े खुदा। और खुदा बाप, तेरे बच्चे आज़ाद हो, गवाहियाँ मिले खुदा, तेरे हजूर बरकत को ये रिसीव करे। ऐ पाक खुदा, ये तेरी महिमा गाएं, ये तेरे साथ वफादारी के साथ चलना शुरू हो खुदा। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा, अगर पाक खुदा किसी भी सबब से तेरे लोग परेशान हैं तो उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दे, यीशु के नाम से ख़त्म कर दे खुदा। अगर कादिर मुतल्लिक खुदा, जिनके पास कोई खुराक नहीं है, जो इस वबा के सबब से जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, खुदा उनको सब कुछ मुहैया कर खुदा। तेरा रूह कुद्दस उनकी सारी राहों का हमवार करे। और पाक खुदा, इस सारी हैबत से तू छुटकारा अता फरमा, अपने बच्चों की सारी ज़रूरियात को पूरा कर, रोज़गार मुहैया कर खुदा, जॉब मुहैया कर पाक खुदा। जो ये खो चुके हैं यीशु के नाम से, ये दोबारा आना शुरू खुदा, ये दोबारा पाना शुरू करे, दोबारा तेरी हजूरी के अंदर ये रिसीव करना शुरू करे खुदा पाक खुदा। ऐ कादिर मुतल्लिक खुदा, जो इस वक्त खुदा किसी भी सबब से परेशान है, गम की हालत के अंदर है, उनके सारे गम यीशु के नाम से तू ख़त्म कर, तेरा मस्सा सारे बंदरों को खोले खुदा बाप। और इसी तरह खुदा हम दुआ करते खुदा, यीशु के नाम से तेरे रूह कुद्दस की कुदरत उन तमाम बेटियों पर, बहनों पर जिनके यहाँ औलाद नहीं है, यीशु के नाम से है खुदा, उनके लिए औलाद को तू मुहैया कर। तू यहोवा जरी खुदा है, औलाद तेरी तरफ से मिरास है। और खुदावन पाक खुदा, यीशु के नाम से उन बेटियों को, उन बहनों को यीशु के नाम से इस मिरास के साथ नवाज खुदा। तो ब्लेस कर, कुशीदा ज़ाहरी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो खुदा, और तेरे बेटे औलाद की बरकत को हासिल करके तेरी शुक्रगुजारी करें और तुझे जलाल दे सके खुदा। और इसी तरह खुदा हम दुआ करते हैं, एक एक पर तेरी हुजूरी को, बरकत को, सलामती को चाहते हैं। जितनों ने आज रुखास से किया, फिर से तेरे हुजूर खुदा पाक खुदा उनके लिए सलामती को, बरकत को, खुशहाली को, मुबारक हाली को तुझसे मांग लेते हैं। जब हम कल मिलते हैं तो इसी मोहब्बत में, इसी रफ़ाकत के अंदर, हम तेरी हुजूरी के अंदर हम एक दूसरे को सलामत देख सके, पा सके। और फिर से कल खुदा बाप तो हमें ब्लेस करना, अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल करना, तेरा रूह कुद्दस, तेरा मस्सा, तेरा जलाल हमारे चुगिर्द ठहरे खुदा। और पाक खुदा, इससे बरकरार खुदा कल हम शाम तेरी बरकत को रिसीव करें और तुझे मुबारक कर सके खुदा।
हुक्म, हमारी मदद कर और रहनुमाई फरमा। यीशु मसीह के आला और पाक नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आप सबों की सलामती हो, खुदा आपको बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने यकीनन आज फिर से खुदा के कलाम की बरकत को रिसीव किया है और ये बरकत आपके खानदानों तक मैं ईमान रखता हूँ यीशु के नाम से महफूज रहेगी और आप बढ़ते जाएंगे, कुव्वत हासिल करते जाएंगे, जोर को पाएंगे। खुदा का रूल कुद्दस आपके साथ है, खुदा का मसा आपके साथ है, खुदा का कलाम आपके साथ है। और अब आप मत घबराएं, खुदा की हजूरी आपके चुगिर्द है। खुदा आपको देख रहा है, आपकी मुश्किलों से वाकिफ है, खुदा आपकी परेशानियों से वाकिफ है, खुदा आपकी ज़रूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है। फ़कत आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ हमेशा लगा रहे। खुदा आपके साथ हो और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखिएगा। और खुदा के हुजूर दस्ते दुआ कीजिएगा ताकि ये वबा जल्द ख़त्म हो और जल्द हम आज़ादी के साथ खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और हर चीज़ के अंदर बेहतरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यस।